Hi everyone, and let me introduce that we are introducing a new platform from Network Kings only. Like it's called Skills for Everyone. So in that we are starting a network engineer career program right now, which includes CCNA, CCNP, and a Palo Alto. So this is just a Palo Alto demo session in that where the trainer is Ankush. Okay, he's going to train you the Palo Alto, and after allowing me the Ankush that he'll available, we'll start the class. Okay, so be connected and be online. Hello everyone. Good morning. Hope I am audible. Yes, Ankush, you are audible. Okay. So Ankush, you are the host now, and the class is yours. Carry on. Okay, sure. अ, I'll share my screen. अंकुश 2-3 मिनट और वेट करते हैं स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं हम्म, बाद हम स्टार्ट करते हैं सेशन ठीक है. Okay. थैंक यू अंकुश Hope my screen is visible Yes, Yes, yes. and you all are comfortable with Hindi. Correct? yes, sir. Yes. ठीक है. यस अंकुश प्लीज स्टार्ट द सेशन So we'll start this session with intro. So my name is Ankush. I have 10 plus years of experience in this industry. I am certified in PCNSA, PCNSE. NSE for FortiGate certified हूँ मैं and checkpoint to CCSA and I am also certified in F5, F5 certified administrator, and I have done 30 and 30B and CISSP as well. So in this class, we'll discuss about course curriculum and how we can become PCNSA certified and 1 minute. So we'll go through it, certificate and course curriculum, what is firewall, why Palo Alto is leading, and what all job opportunity in market after doing this training. Okay. So I think उत्कर्ष ने अभी already आप लोगों को बता दिया है कि ये part of CCNA, CCNP and Palo Alto. So I'll be taking Palo Alto here. Okay. So anyone having any question before starting this session? No, sir, nothing. Okay, fine. So prerequisite क्या रहेगा? I think किसी ने इंद्रनील ने कुछ लिखा है स्क्रीन पे. He can delete. Basic security knowledge. If I'm saying basic network, OSI, TCP, IP model, ये सब होना चाहिए. Understand basic networking, routing आना चाहिए. Basic means CCNA level of understanding at least होना चाहिए, जिसमें what is IPv4, IPv6 and subnetting. Networking fundamental, जो again वही CCNA basic. पालो अल्टो रखा Sorry. है 3 टायर आर्किटेक्चर पालो अल्टो का Sorry पालो दीप. अल्टो और चेक पॉइंट दोनों ही थ्री टायर आर्किटेक्चर हाँ दीप. हेलो हेलो. अगर आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो तो रिक्वेस्ट यू म्यूट कर लो अपने आप को. Sir, One minute. mostly, sir, I'm very much fresher to this one. So, एकदम बेसिक से हम लोग कवर करने जा रहे हैं. कोर्स कैरिकुलम एक बार बता दूंगा मैं क्या क्या कवर करने वाले हैं, फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं. okay, sir. So ये prerequisite आना जरूरी है क्या सर? मतलब मेरे को इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है. एटलीस्ट आईपी का, IPv4, IPv6 का नॉलेज होना चाहिए, सबनेट मास्क का नॉलेज होना चाहिए. सो सर मेरे को वो हाँ उसका डेफिनेशंस वगैरह पता है सर, बट वो हाउ इट वर्क्स आई डोंट नो दैट मच. यस मकरंद, एक्चुअली हम सीसीएनए सीसीएनपी से भी स्टार्ट करेंगे. जस्ट एक क्वालिटी आइडिया के लिए आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं ट्रेनिंग, इसलिए आपको डेमो सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है. ओके 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 सर, थैंक यू. ये किसके लिए कोर्स है? जो PCNA से सर्टिफिकेशन करना चाह रहा है, फायरवॉल सीखना चाह रहा है एंड वांट टू लर्न पॉलिश देयर स्किल्स. कोर्स एड ऑन के लिए है विद दिस कोर्स फॉर. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. 1 minute, I'll do one thing. I'll make it so we'll start from introduction.
what is firewall, what is the need of PCNSS certification, how we can clear the PCNSS certification. Important of network security, what is the objective of training, we'll cover in detail. Palo Alto network overview, what is the company, when it founded, and why its name is Palo Alto, everything, why it's called next generation firewall. Firewall essential, how we can configure deployment model, all these in detail we're going to discuss in this course. Security policy and user ID, how we can, what is user ID, how we can create policy, how can allow someone, how we can deny. These things we are going to discuss in detail in this course. What is app ID? It's a unique feature जो other firewall में नहीं है. App ID. How we can block the threats? What is threats? ये cover करेंगे. Wildfire, it's a zero day attack protect करने के लिए होता है. What is zero day? Anyone aware about it? Zero day protection. Zero day attack. Sorry. It is new in the market, like before it was not coming in the. Yes. So इसके लिए Palo Alto के पास हमारे पास Wildfire solution है, cloud based solution है. So how does it work? We are going to discuss in detail. Security profile, zone and DOS and DDoS, how we can create profile, how we can protect from attack, what is DOS attack और what is DDoS attack. So कितने तरह का अटैक होते हैं, कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट करेंगे Palo Alto के थ्रू, we will discuss in this course. डिवाइस आईडी, ब्लॉक थ्रेड्स, ये ब्लॉक थ्रेड्स कहते हैं, थ्रेड्स एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन. थ्रेड्स के भी कई कैटेगरी है, कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं. कंटेंट आईडी एंड कंटेंट को कैसे करेंगे. मॉनिटरिंग थ्रेड्स एंड ट्रैफिक, फायरवॉल लॉग फॉरवर्डिंग, एनालाइजिंग. लॉग फॉरवर्डिंग मीन्स अगर आपके पास सिस लॉग है या सॉक कोई सोल्यूशन है, वहां पे हम लोग लॉग फॉरवर्ड करते थे, कैसे कन्फिगर करते हैं, कैसे वर्क करता है. विल डिस्कस दिस इन दिस कोर्स. जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उसका 20-30% थ्योरी रहेगा, सारे लैब रहेंगे, लैब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन एंड रियल टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रबल शूट करते हैं, सारे रहेगा. इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिनेरियो, अगर कोई इंसिडेंट आता है, हाउ वी कैन स्टार्ट, व्हाट वुड बी द अप्रोच एज अ फायरवॉल इंजीनियर, एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फायरवॉल का इशू है भी कि नहीं है. ये सारी चीजें, रियल वर्ल्ड यूज केसेस, सारे यूज केसेस अगर आपके भी अगर कोई काम कर रहा हो वो भी बताएगा. एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस जो भी है कि क्या क्या केसेस आते हैं, कैसे हम लोग अप्रोच रहता है, वी विल डिस्कस दैट. एग्जाम प्रिपरेशन फॉर PCNSA, व्हाट वुड बी द ब्लूप्रिंट, प्रैक्टिस, असेसमेंट, ये सारे. एंड कंक्लूजन, की कंसेप्ट को रिकैप करेंगे. एंड सर्टिफिकेशन के लिए एंड Q&A, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है उसके लिए क्लास लेंगे. ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? 1 minute, let me open my second slides and start करेंगे very basic से. What is the need of firewall? So we'll start from security basic terminology. Okay. Before we are firewall का need क्या है, उसके लिए हमें understand करना है what is basic security terms. So anyone aware about what is asset, what is vulnerability, exploit, threat, attack, risk and countermeasure? What are these terminology? Anyone? Hello, am I audible? यस. मैं एक क्लास इंटरेक्टिव करना चाह रहा हूँ. सो कोई अवेयर, यस या नो में आप बता सकते हो. यस, वी नो व्हाट इज ऑल एसेट? दिस. Hello, sir. So to be honest, we are very like I am very new to this. I don't know about that. Okay, no worry, we'll start from. Asset is anything which is organization invested, जो important है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए.
सो दैट कुड बी ऑर्गेनाइजेशन या किसी के लिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, आपके लिए लैपटॉप है, मोबाइल फोन, दैट कुड बी एसेट। सो बिल्डिंग्स हो गया एसेट, व्हीकल हो गया। सो हम लोग इसमें देखेंगे हम लोग हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर डेटा। डेटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डेटा। सो हाउ वी कैन एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर हमारा जॉब क्या है? टू प्रोटेक्ट आवर एसेट। क्लियर? ये हमें फ्रॉम फायरवॉल विल प्रोटेक्ट आवर एसेट। व्हाट इज Yes. एक्सप्लॉइट? वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी वो होता है जो थ्रेट मिल चुका है और उसके ऊपर उस अटैक, मतलब जिस अटैक के बारे में मालूम है, which मतलब कुछ can be लूप्स easily वगैरह attacked. हमारे नेटवर्क में कुछ है तो वो वल्नरेबिलिटी हो जाता है। या लूप कह सकते हैं। वीकनेस इन एनीथिंग लाइक इन ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, नेटवर्क हाँ, प्रोटोकॉल में हो सकता है। यस यस इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी में कोई बता सकते हो व्हाट इज वल्नरेबल? जैसे हम लोग टेलनेट यूज करते हैं। यस सर। वो जो एक न्यू है उसके लिए हम लोग कवर करेंगे आगे डिटेल में व्हाट इज टेलनेट। तो टेलनेट 20 किस पे वर्क करता है? पोर्ट 23 में। इसका वीकनेस क्या है? सर ये सिक्योर नहीं होता है सर। यस, ये प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन होता है, या यस HTTP या सर। पोर्ट 80 यूज कर रहे हो, प्लेन टेक्स्ट में होता है, तो सब कोई अटैकर अगर कैप्चर करता है तो क्या होगा? हमारा डेटा देख सकता है। डेटा इवन कैप्चर हो सकता है। यस, कैप्चर करता है तो हमें देख लेगा। लेट सपोज हम यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर करते हैं, सो उसको भी ये भी विजिबल होगा। सो दैट इज यस। वीकनेस इन टेलनेट। सो विल वल्नरेबिलिटी इज एनीथिंग दैट वीकनेस इन एनीथिंग लाइक एप्लीकेशन में हो सकता, नेटवर्क जैसे कि प्रोटोकॉल हमारे ऑपरेटिंग। कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई विंडोज 7 यूज कर रहा है जिसका अपडेट वगैरह पैचिंग, यस, पैचिंग नहीं है। या या व्हाट इज एक्सप्लॉइट? फ्लॉइड। एक्सप्लॉइट इज अ वे जिससे हम लोग वल्नरेबिलिटी को, मेथड विच यूज एन अटैकर। सो लेट सपोज हमने बात किया टेलनेट का, तो टेलनेट में क्या वीकनेस था? वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। एक्सप्लॉइट क्या हो सकता है? अटैकर उसको कैप्चर कर सकता है एंड उसमें हमारे यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, एंड जो भी हम लोग कम्युनिकेशन का वो कैप्चर कर सकता है, देख सकता है। लेट सपोज हम कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो अगर कैप्चर करता है तो उसके लिए विजुअल होगा प्लेन टेक्स्ट में। तो एक्सप्लॉइट इज अ मेथड टू व्हाट इज नेक्स्ट इज थ्रेट। व्हाट इज थ्रेट? तो थ्रेट मीन्स खतरा, वायरस वगैरह, हैकर्स वगैरह से थ्रेट जो होता है सर। या थ्रेट इज एक्शन होता है। वन यस मिनट, सर। समझ पिंगिंग में। ओके, थ्रेट एक्शन होता है। थ्रेट कैन बी आइडेंटिफाई एनीथिंग डेंजर या एनी एसेट। सो एक्शन क्या किया उसने? एक्सप्लॉइट किया इसको, किसको? वल्नरेबिलिटी को, एंड हमारा डेटा चोरी करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेट बोलते हैं। ओके, सो दैट कुड बी हैकर, वायरस, लॉकअप्स, आइडेंटिफाई थ्रेट। सो थ्रेट इज एन एक्शन, मींस उसको एक्सप्लॉइट करने को, वीकनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेट। क्लियर? अटैक कैन बी डिफाइंड एज एन एक्शन टेकन बाय एन अटैकर टू हार्म एन एसेट। रिस्क क्या है? सर रिस्क वही हो जाता है जैसे कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एंटीवायरस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं तो एक रिस्क है कि लेट कुछ सपोज ये अटैक हो। हमारा, यस 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 यस, यस लेट सपोज ये हमारा कंपनी है, यहाँ पे हमारा गेट है जहाँ से हम लोग इन एंड आउट करते हैं। यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, या सिक्योरिटी गार्ड हमेशा सोता रहता है, तो दैट कुड बी वल्नरेबिलिटी। थ्रेट क्या है? कभी कोई अंदर आ सकता है। और रिस्क क्या है? हमारे अंदर एक डेटा है। रिस्क इज प्रोबेबिलिटी, मीन्स ये इंसिडेंट अभी हुआ नहीं है, रिस्क है मीन्स अभी, मीन्स कोई अंदर आके हमारा जो भी सर्वर है, डेटा है, फिजिकल जो भी है वो चोरी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। क्लियर? वल्नरेबिलिटी क्या है? वहां पे गार्ड मीन्स एक्टिव नहीं रहता है। थ्रेट क्या है? कोई भी वो अटैकर आ सकता है और उसमें अंदर जाके हमारा डेटा चोरी कर सकता है। सो रिस्क इज अ प्रोबेबिलिटी। काउंटर मेजर, लेट सपोज हम बात कर रहे थे हमारे टेलनेट का, NHTTP का, तो काउंटर मेजर क्या हो सकता है? हम लोग टेलनेट यूज करना बंद कर दे, हम लोग एक फिल्टर लगा दे कि इफ समवन वांट टू एक्सेस ऑन पोर्ट 23 वो अलाउ नहीं करेगा। टेलनेट की जगह पे हम लोग क्या है?
यूज कर लें, SSH करेक्ट, यस सर, HTTP की जगह HTTPS। यस सर। सी क्या हो गया, काउंटर मेजर। फायरवॉल लगाना, पॉलिसी बनाना, सबको जैसे हमारा एक पॉलिसी बना हुआ है, हमने सारे यूजर को एनी अलाउ कर रखे हैं। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एनी, एन स्पेसिफिक यूजर कैसे बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटर मेजर। अगर हम लोग स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाने लगे, सो दैट वुड बी आवर काउंटर मेजर। यही हमने डिस्कस किया था। सो सिक्योरिटी नॉट अ वन टाइम सॉल्यूशन, ऑलवेज। जैसे आप पैचिंग के आपने किसी ने बात किया, इवन आप लेटेस्ट विंडो भी यूज करते हो तो टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना पड़ता है। आप किसी भी डिवाइसेज पे, अभी इवन मोबाइल भी यूज कर रहे हो तो और करना पड़ता है, नहीं तो वल्नरेबल हो जाता है। उसमें कोई भी अटैक आता है तो उसमें कंपनी क्या करती है, उसके लिए एक पैचिंग निकालती है, अपग्रेड करती है। सो वन टाइम वल्नरेबिलिटी है तो एक्सपोज टू रिस्क, रिस्क है तो काउंटर मेजर है। काउंटर मेजर के लिए हम लोग एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए काउंटर मेजर लगाते हैं। फिर ये साइकिल हमेशा चलता रहता है, इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब। क्लियर। तो एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर हमारा जॉब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट आवर एसेट। सो अब एसेट कई तरह के हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट क्या होता है, देयर डेटा, करेक्ट। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल यूज करते हैं। सो व्हाट इज फायरवॉल, एनीवन अवेयर अबाउट इट। तो फायरवॉल जो है एक सिक्योरिटी डिवाइस है जिसके थ्रू हम थ्रेड्स को, वायरसेस को, पॉलिसीज को हम क्रिएट करते हैं, यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम, फायरवॉल वही हो जाएगा सर। फायरवॉल किससे बना है, फायर एंड वॉल। सो दैट कुड बी अभी नाउडेज तो ये इंटरनल भी यूज करते हैं। पहले हम लोग किसके लिए यूज होता था, ट्रस्ट एंड अनट्रस्ट के बीच में एक बाउंड्री होता है, बॉर्डर पे यूज करते थे। लेट सपोज हमारे बॉर्डर पे हमारे फोर्सेज होती है टू प्रोटेक्ट, जो अनऑथराइज एक्सेस ना कर सकते हमारे प्रेमिसेस को। सो दैट कुड बी, फायरवॉल क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एंड हार्डवेयर भी हो सकता है, एंड क्लाउड बेस्ड भी हो सकता है। तो दैट कुड बी एनीथिंग। इफ आई एम सेइंग सॉफ्टवेयर, सो हम लोग सॉफ्टवेयर किसी VMware वगैरह पे डिप्लॉय करते हैं, iOS डिप्लॉय करते हैं। So that is firewall used to stop mitigate unauthorized access. Let's suppose ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमने एक फायरवॉल लगा दिया अपना। यहाँ पे हमारे सर्विसेज है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हमारे सर्वर होस्टेड है, जो हमारे क्रिटिकल सर्वर है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडेड है। सो अनऑथराइज कोई अनट्रस्ट से, या इवन इंटरनल भी, या दो जोन में, लेट सपोज एक लाइन जोन है, DMZ जोन है, एंड अनट्रस्टेड जोन है। तो कोई DMZ जोन से भी आना चाहे तो उसको अनऑथराइज एक्सेस, उसके लिए क्या करना है, ऑथराइज करने के लिए हम यूजर नेम एंड पासवर्ड हो गई या पॉलिसी बनाना होगा यहाँ पे, तो चेक करेगा, देन ओनली अलाउ करेगा। ओके। फायरवॉल जो पॉलिसी डिफाइन करेंगे वही अलाउ करेगा। लेट सपोज यहाँ पे एक यूजर है इन DMZ जोन में या कहीं भी, उसका IP है, यहाँ पे एक यूजर है, इट्स कनेक्टेड टू फायरवॉल, इट्स IP 10.1.1.10। You want to access this server, its IP is let's suppose 12.1.1.10, 443 22 पे एक्सेस करना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे एक पॉलिसी बनाते हैं, if someone is coming with source this one, want to source, अगर क्या इससे आए आप कुछ 10 बना रहे हो क्या, मतलब कि जो स्लाइड सर में शो नहीं? स्क्रीन स्टक है, वो दिख नहीं रही आप लोग को। नहीं सर। फायरवॉल टेक्नोलॉजीज पर स्टक है। ओके, आपको ये कौन सा, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है, अभी दिख रहा है। सही, यही वाला दिख रहा है यही अभी। वाला दिख रहा है सर। जी सर यही है। ओके ओके ओके, 1 मिनट, टेल दो, वहीं पे मैं बताता हूँ। अभी ये स्क्रीन दिख रहा है, करेक्ट। यस यस।
पहले दिख रहा था स्क्रीन जो मैं दिखाया था, नहीं वल्नरेबिलिटी थ्रेड कुछ भी नहीं दिखा। नहीं, वो तो दिख रहा था, लेकिन अभी आप कुछ शायद ड्रॉ कर रहे थे, हाँ ठीक है पाइथन ठीक है आईपी ठीक है वगैरह ठीक है ठीक वो नहीं दिख रहा था है, मुझे। अभी ये दिख रहा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, ये दिख रहा है। ठीक है ओके, मैं फिर से कर देता हूँ ड्रॉ। लेट्स सपोज दिस इज आवर क्लाइंट फ्रॉम इंटरनेट, ये इंटरनेट पे है, ये यहाँ पे हमारा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमने एक फायरवॉल लगा दिया है, लेट्स सपोज, एंड ट्राइंग टू एक्सेस आवर होस्टेड एप्लीकेशन। यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमने होस्ट किया है abc.com। इसका आईपी है 10.1.1.10 एंड इसका आईपी है 12.1.1. लेट्स सपोज 10। तो यहाँ पे फायरवॉल क्या काम है, इट विल चेक बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिनाई ऑन फायरवॉल, ये हमें माइंड में रखना है। तो इसके लिए हमें क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम सोर्स दिस आईपी 10.1.1.10 and want to access this 12.1.1.1.10, सोर्स पोर्ट ऑलवेज रेंडम होता है, सो सोर्स पोर्ट शुड बी एनी। ये रेंडम क्यों होता है ये भी बताऊंगा। डेस्टिनेशन स्पेसिफिक होता है, लेट सपोज हम इसको 22 पे अलाउ करते हैं, डेस्टिनेशन इज 22 रहे तो अलाउ करते। ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि हमारा पॉलिसी जो ये बाउंड्री पे है हमारा, दो जोन के बीच में हो सकता है, या माइक्रो सेगमेंटेशन कर सकते हो तो दो सबनेट के बीच में भी आप लगा सकते हो, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या क्या डिप्लॉयमेंट मेथड है विल डिस्कस इन डिटेल। पालो अल्टो में क्या क्या होता है, एज हम जनरल में फायरवॉल का बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रहा है प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो बेस्ड ऑन द अलाउ पॉलिसी ये ओनली अलाउ करता है, बाय डिफॉल्ट एवरी पॉलिसी डिनाई होती है, एवरी ट्रैफिक डिनाई होता है। तो अगर मैंने एक पॉलिसी बनाई 10.1.1.10 से, अगर कोई समवन कमिंग विद डिफरेंट टाइप है, लेट्स सपोज एक और यूजर है वांट टू एक्सेस 10.1.1.11, अगर ये एक्सेस करना चाह रहा है इसको, तो डिनाई हो जाएगा, फायरवॉल विल नॉट अलाउ, बिकॉज चेक करेगा अपना पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसी अगर मैच नहीं करेगा सो इट विल डिनाई। ओके, इट ग्रांट्स एंड रिजेक्ट पॉलिसी एंड ट्रस्ट एंड ट्रस्ट जोन। सो फायरवॉल ये पालो तो जोन बेस्ड फायरवॉल है। आगे आएगा कितने टाइप के फायरवॉल होते हैं, व्हाट इज जोन बेस्ड फायरवॉल, व्हाट इज इंटरफेस बेस्ड होता है। सो पालो अल्टो इज अ जोन बेस्ड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पालो अल्टो ओनली इन दिस क्लास, जो अपकमिंग सेशन होगा। इसके क्या क्या डिप्लॉयमेंट मेथड है, डिप्लॉयमेंट मेथड कैसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। एक होता है लेयर 3, ये आगे सारी चीजें आएंगे डिटेल में। लेयर 2 एज अ स्विच भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। वी वायर ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं इसको। एंड लेयर 2 लेयर 3 एंड टैप मोड, ये पीओसी के लिए यूज होता है। व्हाट इज पीओसी ये भी बताऊंगा और सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फायरवॉल समझ में आ गया, व्हाट इज फायरवॉल, क्लियर। इसके जनरेशन ऑफ फायरवॉल, Okay. a firewall can be hardware, so both can be cloud based firewall या virtual wire. First generation firewall technology considered packet filter techniques. So first generation firewall को हम लोग क्या बोलते थे, पैकेट फिल्टर फायरवॉल। व्हाट इज पैकेट फिल्टर फायरवॉल, ये हमारा फायरवॉल है जो अभी हमने डिस्कस किया था, आईपी चेक करता है ये हमारा फायरवॉल है। ये हमारा एक सर्वर है, यहाँ पे एक यूजर है, यूजर इज कनेक्टेड टू स्विच एंड स्विच इज कनेक्टेड टू फायरवॉल। लेट्स सपोज ये हमारा एक सिनेरियो है, इसका आईपी है, अगेन आई एम टेकिंग 10.1.1.10 एंड इसको लेट सपोज मैं 2.2.10। एंड जो फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल था वो स्टेटलेस था। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल क्या होता है, ये आगे एक स्लाइड में है। स्टेटलेस, इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस दिस सर्वर एंड अगर ये, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पॉलिसी होगा जब भी अलाउ करेगा। तो ये ओनली क्या चेक करता था,
आईपी चेक करता था। एंड बाय डन स्टेटलेस मीन्स अगर सम लेट सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हो, मैं कैसे बताऊं इसको, इफ समवन इज, ये हमारा जोन है, लेट सपोज ट्रस्ट, ये डीएमजेड डीमिलिटराइज्ड जोन, ये सारी टर्मिनोलॉजी आगे आएंगी, डिटेल में बताऊंगा मैं। सो बेस्ड ऑन द आईपी, तो रिटर्न के लिए भी अगर आप एक्सेस किया तो रिटर्न के लिए भी दो पॉलिसी बनाने पड़ती थी यहाँ पे, कि एक समवन इज कमिंग फ्रॉम सोर्स इज 10.1.1.10, डेस्टिनेशन हमारा अगर 10.2.2.10 रहा है, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, अगर डेस्टिनेशन पोर्ट हमने लेट सपोज 22, तो एक्शन में हम लोग क्या करते थे, अलाउ, एंड रिटर्न आएगा। कोई भी अगर जा रहे हो आप, लेट सपोज कुछ कोई पैकेट भेजो, अनटिल अनलेस रिस्पॉन्स नहीं होता है, लेट सपोज आप गूगल को एक्सेस कर रहे हो, तब गूगल भी आपको जब रिस्पॉन्स आएगा जब भी आपका पेज ओपन होता है, तो कभी भी रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स भी आता था। तो रिस्पॉन्स पैकेट के लिए भी हमें क्या करना पड़ता था, हमिद गुल आप कुछ स्क्रीन पर राइट मत करो, रिटर्न के लिए भी हमें बनाना पड़ता था एक पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड स्टेटलेस। सो पैकेट फिल्टर ये बेस्ड ऑन द ईच पैकेट चेक करता था, ओनली आईपी की नॉलेज थी, एप्लीकेशन का नहीं था, मीन्स ओनली पोर्ट आइडेंटिफाई करता था। लेट सपोज अगर मैं एसएसएच कर दूं, यहाँ पे एसएसएच कौन सा पोर्ट यूज करता है, पोर्ट 22। सो एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पैकेट फिल्टर फायरवॉल को, इसको फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं। और रिटर्न के लिए भी ये कोई स्टेट का इंफॉर्मेशन नहीं रखता था, रिटर्न के लिए भी हमें पॉलिसी बनाना पड़ता था। तो यहाँ पे फिर से अगेन हमें पॉलिसी बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ से रिटर्न पैकेट आए तो सोर्स हो जाएगा 10.2.2.10, डेस्टिनेशन हो जाएगा 10.1.1.10, एंड सोर्स पोर्ट अगर 22 रहे एंड डेस्टिनेशन एनी रहे तब अलाउ करता था, दैट इज कॉल्ड स्टेटलेस फायरवॉल या फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल। देन उसके बाद आया सेकंड जनरेशन फायरवॉल, या सर ये पॉलिसीज बनाता कौन है, मतलब ये कोई अब ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कि यूजर? फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मैं अगर सिक्योरिटी इंजीनियर हूं तो मैं बनाऊंगा, जैसे आप कर रहे हो तो ओके आप ओके बनाओगे, यही सिक्योरिटी इंजीनियर का ही काम होता है कि बेस्ड ऑन द ओके रिक्वेस्ट सर। हम लोग पॉलिसी बनाते हैं। क्लियर? ओके सर। अब मैं जब लैब दिखाऊंगा ये समझ में आएगा कि विदाउट पॉलिसी कैसे वर्क नहीं करता है और मैं क्या क्या बता रहा था। तो इसके बाद मैं लैब में भी शो करूंगा। देन आया कौन सा, second generation firewall, that is called application layer technology. Application layer, what is application layer? तो यूजर यूजर की तरफ होता है एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल सबको आता है, होप सो। यस। मीन्स एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग इसको हो गई। मीन्स अब मैं अगर ये कर रहा हूँ HTTP आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इसका पोर्ट क्या है, HTTP किस पोर्ट पे वर्क करता है, एनीवन? ये सब सबको आना चाहिए, पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अभी भी नहीं आता है तो। ये सारी चीजें, टेलनेट बेसिक पोर्ट कौन कौन से होते हैं, टेलनेट, टेलनेट का पोर्ट क्या होता है, HTTP वर्क्स ऑन पोर्ट 80। ये अनसिक्योर पोर्ट होता है, आप कभी भी आप ब्राउज करते हो HTTP और रिडायरेक्ट होकर HTTPS पे आ जाता है 443। ये भी डिस्कस करेंगे कैसे रिडायरेक्ट होता है एंड कैसे हम लोग सिक्योर करते हैं। ये क्यों नॉट सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन करता है। टेलनेट पोर्ट 23 पे वर्क करता है, इसको सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनक्रिप्ट करना पड़ता है इसको पोर्ट 22। यहाँ भी इंक्रिप्शन होता है, तो पोर्ट 80 को इनक्रिप्ट करते HTTPS बन जाता है। इनक्रिप्ट कर देगा मींस बीच में कोई अटैकर अगर इसको कैप्चर करता है उसी नहीं कर पाएगा। सो एप्लीकेशन लेयर की इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर टेक्नोलॉजी, मींस एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, मींस एप्लीकेशन समझता था कि ये HTTP ट्रैफिक है, HTTPS ट्रैफिक है, टेलनेट है, SSH। पहले क्या था, हमें पोर्ट डिफाइन करना पड़ता था 23, SSH का 22 पोर्ट था।
यूडीपी किस पे, सॉरी डीएनएस किस पे वर्क करता है? पोर्ट नंबर TNS 53 डिफॉल्ट पे 53 यस। हमारा जो बिट टोरेंट भी है वो किस पे वर्क करता है? बिट टोरेंट इज ऑल्सो वर्क्स ऑन पोर्ट BitTorrent is also works on port 53। सो हम लोग जब पालो अल्टो में देखेंगे कंटेंट आईडी जब इंस्पेक्ट करता है, सो इरिस्पेक्टिव ऑफ पोर्ट ये कंटेंट को चेक करता है कि अगर हमें डीएनएस भेज रहे हैं डीएनएस का ट्रैफिक है कि नहीं। सो हमारा इसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन ये एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करने लग गया। अगर मैं यहाँ पे डीएनएस अलाउ कर रहा हूँ डायरेक्ट ये डीएनएस को अलाउ करता है। अगर मैं एचटीटीपीएस से अलाउ कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे एचटीटीपीएस एसीएल वगैरह थे पहले। अगर एसीएल कोई चीज को राउटर वगैरह तो एसीएल हम लोग बनाते हैं, तो पैकेट फिल्टर एसीएल था। देन हम लोग इसमें एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करने लगे, एंड देन आया इट्स अ थर्ड जनरेशन फायरवॉल स्टेटफुल, एंड इसी का नेक्स्ट वर्जन है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सो व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड स्टेटफुल फायरवॉल? जो सेकेंड जनरेशन भी था स्टेटफुल था। व्हाट इज स्टेटफुल एंड स्टेटलेस? अभी मैंने यहाँ पे बताया था। अब लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, अभी आपने एग्जिट करके बाहर गए, गार्ड को आए, फिर से आपको दोबारा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने गार्ड ने आप इंटीरियर बना के रखा है कि आपका नेट सपोज XYG नेम है, तो XYG ये बंदा बाहर गया था, यहाँ मार्केट तक गया था, ये हमारा प्रीमिसेस है। अगर ये वापस आएगा, अभी यहाँ पे गया था तो इसने अपनी एंट्री बना के रखी थी, इसने एंट्री बना लिया कि XYG नाम का कोई बंदा बाहर गया है, मार्केट गया है। अगर आएगा, अगर सेम बंदा है तो उसको आइडेंटिफाई करूंगा और अलाउ कर दूंगा। करेक्ट? दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल। स्टेटलेस में अगर आप गए तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं, अगर रिटर्न करके आओगे तो फिर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेट सपोज बोलेगा मैनेजर से बात करा हो, या जो भी फॉर्मेलिटी है फिर से डॉक्यूमेंट या मेल पे प्रूफ लेके आओ। तो वाट एवर जो कंपनी में होता है, ऐसे ही फायरवॉल में होता है, जो पैकेट बाहर गया उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, रिटर्न पैकेट का भी उसके लिए पॉलिसी होना चाहिए, जब भी अलाउ करता है वहां परमिशन होना चाहिए। स्टेटफुल में क्या आया, एक ही पॉलिसी रहेगा। अगर सेम पैकेट बाहर गया, लेट सपोज मेरा पीसी से मैं गूगल पे गया हूँ, तो गूगल भी रिस्पॉन्स करेगा मुझे जब भी मेरे पे डेटा पहुंचेगा। मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ मीन्स वो हमें उसका ऑटोमेटिक अलाउ है। स्टेटफुल है मीन्स मैं अगर बाहर गया हूँ तो मैं रिटर्न में आऊंगा, मैं ये सपोज ये जगह है कोई, ये भी, अगर मैं ये यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो सोर्स क्या हुआ हमारा, ये। करेक्ट? हेलो? एंड डेस्टिनेशन क्या हुआ, बी होगा। करेक्ट? यही होगा ना? हाँ जी हाँ जी। डेस्टिनेशन हो गया बी। अब मैं रिटर्न आऊंगा, लेट सपोज मैं कोई पैकेट लेने गया हूँ या कुछ भी लेने गया हूँ, अनटिल अनलेस रिटर्न आऊंगा नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा सेशन। तो रिटर्न आने के लिए क्या होगा, हमारा सोर्स क्या हो जाएगा? B अब सोर्स हमारा हो गया बी एंड डेस्टिनेशन हो गया ए। करेक्ट? तो स्टेटलेस में क्या करते थे हम लोग, दोनों पॉलिसी बनाते थे। ये कोई स्टेट मेंटेन नहीं करता था। तो हम लोग बनाते थे कि कोई अगर कोई XYG अगर बी डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो उसको अलाउ कर दो, एंड अगर फिर बनाते थे कि अगर फिर वो वापस आए तो उसको अलाउ करो। बट स्टेटफुल में क्या हुआ, हम एक ही बनाते थे कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर ये बाहर जा रहा है तो रिटर्न भी आएगा, तो इसको फिर से पॉलिसी की जरूरत नहीं है, उसी बेस की पॉलिसी पे जो हमने सेशन बना रखा है उसी पे अलाउ कर देंगे। दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन? ये आगे आएगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब इसी के स्लाइड में है। इसमें और भी फीचर ऐड हो गए। लेट सपोज कंटेंट आइडेंटिफाई करना, कंटेंट आईडी, ऐप आईडी, इन यूजर आईडी। जब हम लोग फायरवॉल पढ़ेंगे देखेंगे, हम जो भी पॉलिसी बना रहे हैं या पहले बनाते थे वो सारे हम लोग किसके बेसिस बनाते थे, आईपी के बेसिस पे बनाते थे।
बट फायरवॉल में क्या हुआ, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आए ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी बनाने लग गए। लेट सपोज मैंने एक मेरा यूजर नेम है ABC, अंकुश का यूजर नेम है ABC123, अभी उसका आईपी है 10.1.1.1.20। तो मैंने एक पॉलिसी बना दी है कि अगर इस यूजर से कोई अगर गूगल को एक्सेस करना चाहे अलाउ कर दो। तो अगर ये आईपी चेंज भी हो जाता है, कल को ये 21 हो गया या 25 हो गया, सो फिर भी अलाउ रहेगा, क्योंकि इसको यूजर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, ना कि आईपी को ओनली। तो दैट इज यूजर आईडी को, ये फीचर आईडी नेक्स्ट जनरेशन फाइल ऐप आईडी ऐप को आइडेंटिफाई करता है। लेट सपोज मैं फेसबुक को यूज करना चाहता हूँ, फेसबुक में बहुत सारे होते हैं, फेसबुक वीडियो होते हैं, फेसबुक चैट होते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हो या और जो रील वगैरह जो भी देखते हो, उसमें इसको भी कैटेगराइज कर दिया, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेब ब्राउजिंग ओनली अलाउ कर दूंगा, चैट को ब्लॉक कर सकता हूँ, वीडियो को ब्लॉक कर सकता हूँ। थ्रू ऐप आईडी ओनली वी कैन अचीव दिस। सो विद इन एप्लीकेशन हम उसके कैटेगराइज कर दे रहे हैं और उसके ऑन द बेसिस ऑफ डेट हम लोग एक्शन ले पा रहे हैं। कंटेंट आईडी, लेट सपोज आप ईमेल भेज रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि ईमेल में कोई पर्सनल इन्फॉर्म PII जो है ना, ये कोई शेयर ना कर पाए, आधार कार्ड शेयर ना कर पाए, PDF शेयर ना कर पाए, उसके हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए समवन ट्राइंग टू शेयर दिस पैकेट, वो फायरवॉल आइडेंटिफाई करेगा और ब्लॉक कर देगा। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है। ये सारे फीचर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर सकता है। अ, आपने नोटिस किया होगा कोई, ये तो आजकल एप्लीकेशन में भी सिक्योर है, कोई एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी, लेट सपोज यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल रहे हो तो पासवर्ड भी आपको प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है। ऐसे आपने नोटिस किया होगा, कभी भी करते हो तो XXX में आता है, स्टार डॉट बना हुआ आता है, पासवर्ड कभी विजिबल नहीं होता है, करेक्ट। अभी आप कहीं भी लॉगिन करते होगे या फेसबुक या गूगल या व्हाटएवर, आपको कहीं क्रेडिट कार्ड में अपना पासवर्ड डाल रहे हो या ATM का पासवर्ड डाल रहे हो, तो ये विजिबल नहीं होता है, बिकॉज विजिबल होगा तो कोई लेट सपोज कोई स्पूफ कर रहा है, आपको देख रहा है, तो आपको वो देख सकता है। तो लेट सपोज ये एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है, प्लेन टेक्स्ट में दिखाता है, तो बट इसको हम लोग थ्रू फायरवॉल भी हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर पासवर्ड एप्लीकेशन में अगर दिख भी रहा है, थ्रू फायरवॉल हम लोग इसको मिटिगेट कर सकते हैं, ये नहीं दिखे, सेव नहीं कर सकता है कोई पासवर्ड। ये सारी चीजें हम लोग थ्रू नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कर सकते हैं। कितने टाइप के फायरवॉल है मार्केट में? सोनिक वाले है, वॉच गार्ड है, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, सिस्को है, जूनिपर है, दीज आर फायरवॉल्स। स्टेटफुल फायरवॉल जो हमने अभी डिस्कस किया, इट मेंटेन द स्टेट ऑफ कनेक्शन व्हेन पैकेट इज ट्रेवलिंग फॉर द अप्लायंस। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन स्टेट टेबल मेंटेन करके रखता है। लेट सपोज ये C1 सोर्स है, सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है। TCP/SC ने ऐसे मेंटेन करके रखता है स्टेट टेबल। अगर रिटर्न आएगा मैच होगा तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP चेंज हो जाएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट चेंज हो जाएगा, मैच करेगा, मैच हो रहा है तो रिटर्न ट्रैफिक को भी अलाउ कर देगा। ओके, समझ आया आप लोगों को व्हाट इज स्टेटफुल फायरवॉल? Yes. यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आपको दिखेगा, धीरे धीरे आप लोग नोट डाउन करते जाओ, ये अगर आगे क्लास में सारे रिपीट होंगे। व्हाट इज इग्रेस एंड इंग्रेस इंटरफेस? ये हमारा फायरवॉल है, जहाँ से पैकेट इन करता है उसको बोलते हैं इनग्रेस, जहाँ से एग्जिट करता है उसको क्या बोलते हैं, इग्रेस इंटरफेस, करेक्ट। इंग्रेस से जाए, एग्जिस्टिंग कनेक्शन है देखेगा अपना, अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो उसका यस तो डायरेक्ट यहाँ पे भेज देगा लेयर 7 इंस्पेक्शन के लिए और इग्रेस कर जाएगा। अगर नहीं है तो राउट चेक करेगा, पॉलिसी देखेगा, नेट पॉलिसी देखेगा, लेयर 7 इंस्पेक्ट करेगा। लेयर 7 इंस्पेक्शन मीन्स क्या होता है, क्या व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय लेयर 7 इंस्पेक्शन? लेयर 7 पे क्या होता है, OSI मॉडल सब किसी को आता है, और जिसको भी आता है सही, अगर नहीं आता है एक बार आप लोग पढ़ो OSI मॉडल, इंपॉर्टेंट है काफी, जिसमें कितने लेयर होते हैं OSI मॉडल में? 7 लेयर होती है। 7 लेयर layer. 7 पे क्या होता है? Layer 7 पे एप्लीकेशन लेयर होती है लेयर 7 पे। यस, सो एप्लीकेशन को फिजिकल आइडेंटिफाई कर,
नो नो, फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर लेयर, होता है, सॉरी। यस। हाँ, हाँ करेक्ट। एप्लीकेशन होता है, तो फिजिकल से एप्लीकेशन स्टार्ट को करते हैं और आइडेंटिफाई। एप्लीकेशन पे एंड होती है, फिजिकल हो गई या करेक्ट। या लिंक लेयर हो गई। करेक्ट। अगर एक बार आप लोग फिर से गो थ्रू करना, तो इफ आई एम सेइंग कि लेयर 7 है, इंस्पेक्ट करता है मींस एप्लीकेशन को चेक करता है आईपी के। मैंने जैसे बताया था ना कि अगर डीएनएस भी किस पे वर्क करता है, डीएनएस के कौन से पोर्ट पे वर्क करता है 53। अभी बता। यूडीपी 53 बाय डिफॉल्ट किस पे रहता है? हाँ, बाय डिफॉल्ट यूडीपी का रहता है वो। यूडीपी 53। हाँ, बिट टोरेंट किस पे वर्क करता है? ये भी 53 पे। तो मैंने ये अगर भी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर डीएनएस का ट्रैफिक आए तभी अलाउ करो, तो ये पोर्ट चेक नहीं करेगा। अगर कोई 53 पे कुछ और ट्रैफिक लेके आ रहा है, ये स्पूफ भी कर सकता है आईपी, तो अगर कोई और लेके आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। सो ये लेयर 7 इंस्पेक्ट करता है। ओके, व्हाट इज स्टेटलेस फायरवॉल? ईच पैकेट चेक करता है, कोई स्टेट मेंटेन करके नहीं रखता है, करेक्ट? यही होता है ना, हम्म। जो अभी हमने बताया था कि अगर कोई बाहर जा रहा है कोई ट्रैफिक, रिटर्न के लिए भी पॉलिसी होना चाहिए। स्टेटफुल में एक ही पॉलिसी पे रिटर्न पैकेट को मैच करता है, सेशन बनाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेशन अलाउ कर देता है। टीसीपी 3 वे एंड सबको आना चाहिए, पढ़ के आना सब लोग। टीसीपी 3 वे, तो अब आप जब ये समझ में आएगा ना, तब ये समझ में आएगा व्हाट इज स्टेटफुल स्टेटलेस। आपको कोई भी पैकेट जाता है, बिफोर कम्युनिकेशन आप क्या होता है, दो पीसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। फर्स्ट पैकेट क्या जाता है, सिन। रिटर्न पैकेट क्या होता है, सिन प्लस एक। एक्नॉलेजमेंट। सिन प्लस एक सिंक प्लस एक। मीन्स आप जो पैकेट भेजे उसको सिन तो भेजे ही रहा हो, उसको एक्नॉलेज कर रहा है, एंड अपना भी सिन पैकेट भेज रहा है। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन, आईपी सोर्स फॉर डेस्टिनेशन पोर्ट विंडो, फ्लैग्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एज ए नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर सबको आनी चाहिए। देन एक होता है जेन कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, देन डेटा एक्सचेंज होता है। सो बिफोर कोई भी एक्सचेंज, ये सारे 3 पैकेट चेंज होते हैं जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। अगर हम लोग एसएसएल पढ़ेंगे तो उसमें रीडायरेक्शन होता है, एसएसएल हैंडशेक भी होता है जो कोर्स का पार्ट है। ये भी डिटेल में पूरा बताऊंगा, हाउ डज इट वर्क, कैसे डिक्रिप्ट कैसे होता है, इनक्रिप्ट कैसे होता है। आपने देखा होगा अनऑथराइज एक्सेस आता है, कभी आप लोग एक्सेस कर रहे हो कोई वेबसाइट को, वाई में ऐसा क्यों दिखता है वो, ये सारी चीजें आगे आएंगी। सो 3 बैंड तक आएगा जब ये समझ में आएगा व्हाट इज स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेटलेस मीन्स कोई स्टेट मेंटेन करके नहीं रखता है, ईच पैकेट को इंडिविजुअली ट्रीट करता है, तो इसके रिटर्न के लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। पैकेट फिल्टर फायरवॉल हम लोग फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल पढ़े थे, वही है पैकेट फिल्टर लाइक एसीएल। यहाँ पे हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं कि इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम सोर्स दिस वन एंड डेस्टिनेशन अगर 8.8 को जा रहा है, पोर्ट 53 है, प्रोटोकॉल कौन सा है, यूडीपी, तो क्या कर दे, अलाउ कर दे। सिमिलरली अगर कोई ऐसे जा सर रहा है इंटरनेट पे, हाँ हाँ। हेलो सर, हम्म, कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। सर ये कौन सा बैच चल रहा है? मतलब मैंने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, फ्रेशर हूँ। आप डायरेक्ट फायरवॉल पे समझा रहे हो तो हमें तो ऊपर से जा रहा है बाउंस। नहीं, इसके लिए आपको सीसीएनए, आज डेमो सेशन था तो आप सबको ज्वाइन कराया गया है। सीसीएनए एंड सीसीएनपी भी होगा, आपको अलग से उसकी भी मिलेगी, तो आप उसमें बेसिक सारी चीजें बताई जाएगी आपको, व्हाट इज अच्छा, आईपी, वही मैं आईपीवी4। कहूँ, मैंने अगर समझ सीसीएनए में और नहीं, हाँ, सीसीएनपी वो वगैरह भी है फायरवॉल पार्ट, की ये दोनों चीजें ली हैं। तीनों का पार्ट है। तो मैं पालो अल्टो कर रहा हूँ, आई थिंक पालो अल्टो पहले हो रहा है जिसे आप बता रहे हो। सो हाँ, एक बार ठीक है तो सर। भी बताया जाएगा। अगर ओके। नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डिंग है, एक बार उसको पढ़ के देखना, समझ में आएगा। मैं इसलिए काफी बेसिक से चल रहा हूँ। आईपी वगैरह का ओके। अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इज आईपी, ये आईपी क्या है। नहीं सर। तो एक बार सीसीएनए वगैरह कर लोगे ना, और फिर अंडरस्टैंडिंग हो तो जाएगी। हाँ जी, वो हमारा सीसीएनए क्लास बोला था मैम ने, हाँ। जिनसे मैंने पैकेज हम्म। लिया है। उन्होंने बोला था कि 20 तारीख से ज्वाइन होंगी, लेकिन अभी बोला था कि ये मीटिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ ये रहा। डेमो है। सो अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आप सीसीएनए वगैरह करना, मैं कुछ टॉपिक बता दूंगा उसको पढ़ लेना। तो ये समझ में तो सर काफी उसमें बेसिक से ही उसमें मुझे चलूंगा मैं, लाइव उसमें वगैरह एक्सेस बताऊंगा, नहीं मिल समझ रहा। में आएगा।
ओके सर, उसमें मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा ना रिकॉर्डिंग देखने का अभी तक। एक बार जिनसे वो करे हो एक बार बात करना, जिनसे आप पैकेज लिए हो ना, दे विल हेल्प यू डेफिनेटली। एक मिनट, लेट मी चेक इफ समवन इज हियर फ्रॉम, आई थिंक कोई नहीं। सचिन, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ जी, हाँ जी अंकुश, यस। कुछ अनुज का क्वेरी है उनको, हाँ बेसिक। यस, मैंने सुना। अनुज डोंट वरी, अभी आपका लेवल CCNA से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था पैलो अल्टो फायरवॉल के लिए। जिन्होंने अभी एडमिशन CCNA CCNP से लिया है उनका उसी लेवल से स्टार्ट होगा, ओके, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू अनुज फॉर क्लियरिफिकेशन। ओके सर। सचिन, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो बताया था, ये क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल है जिसमें इच पैकेट को इंडिविजुअली ट्रीट करता है। मीन्स अगर आप बाहर वेर इट इज इंटरनल नेटवर्क, इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम इंटरनेट, यहाँ भी पॉलिसी इसके लिए बनाना होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी अगर इस पैकेट रिटर्न जाता है तो फिर भी पॉलिसी चाहिए। दैट इज पैकेट फिल्टर फायरवॉल। इस पैकेट को, और ये आईपी का अंडरस्टैंडिंग था और पोर्ट का, ये एप्लीकेशन का अंडरस्टैंडिंग नहीं था इस फायरवॉल को। देन दूसरा फायरवॉल कौन सा है हमारा? सेकेंड जनरेशन हमने जो बात किया जिसमें एप्लीकेशन का अंडरस्टैंडिंग हुई थी। नेक्स्ट कौन सा फायरवॉल है हमारा? प्रॉक्सी। व्हाट इज प्रॉक्सी? सब कॉलेज करके आए होंगे, कॉलेज स्कूलिंग करके तो आए होंगे। व्हाट इज प्रॉक्सी फायरवॉल? व्हाट इज प्रॉक्सी? प्रॉक्सी तो पता होगा आप लोगों को। नो सर। किसी को? एनीवन? व्हाट इज प्रॉक्सी? किसी की एब्सेंस में किसी की जो प्रॉक्सी लगाते हैं। या करेक्ट। मीन्स क्या करता था कि हालांकि कोई जो फिजिकल बंदा एब्सेंट है तो सामने नहीं उसके होता, बट बिहाफ। उसके हम उसको दिखा देते थर्ड पर्सन के सामने कि ये फिजिकल अपीयर यस है। यस यस, मीन्स किसी और के बिहाफ पे कर रहे हो आप, हाँ, तो दैट बेसिकली इज किसी और प्रॉक्सी। के तो बिहाफ पे लगा लो प्रॉक्सी। सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट पे जा रहे हो तो हाईली सिक्योर होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क हाईली सिक्योर होता है। तो लेट सपोज आप इंटरनेट पे जा रहे हो तो अपना आईपी इंटरनेट पे एक्सपोज कर रहे हो, तो हैकिंग का चांसेज है। या लेट सपोज किसी आप मलेशियस यूआरएल क्लिक कर दे रहे हो या कुछ डाउनलोड कर ले रहे हो तो आपका इन्फेक्ट हो सकता है मशीन। इसमें क्या होता है, इसको सोल्यूशन क्या है? प्रॉक्सी सर्वर। सो वेन एवर प्रॉक्सी कैसे वो करता है, अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो, यहाँ पे आपने टाइप किया www.abc.com, ये क्या आएगा? डायरेक्ट कनेक्शन। ये आपको इंटरनेट पे नहीं जाएगा, ये रिक्वेस्ट किस पे जाएगा? प्रॉक्सी सर्वर को जाएगा। ये वैलिडेट करेगा कि वेदर इट्स अ लेजिटिमेट यूआरएल है कि नहीं। इसमें कैटेगरी बनी रहती है, एजुकेशन कैटेगरी, ट्रेनिंग का लेट सपोज हो गया, न्यूज कैटेगरी, वेबसाइट, पोर्न हब, अबॉर्शन, मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो चेक करेगा कि ये हमारे यहाँ पे, और इस पे हम लोग डिफाइन कर रखे हैं कि कौन कौन से कैटेगरी हमें अलाउ करना है। लेट सपोज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बंद होता है naukri.com, या जो भी एआई रिलेटेड वेबसाइट है, चैट जीपीटी है, को पायलट है, या गूगल का जो भी है, तो ये बैन रहता है। तो कैटेगरी अगर अलाउ नहीं है तो इसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा। या अलाउ कैटेगरी है, तभी सोर्स इसका क्या था? लेट सपोज इसका आईपी था 10.1.1.10 था, और इस सर्वर का आईपी है 192.168.1.20, और इंटरनेट पे हम लोग जा रहे हैं, उसका आईपी है 1.1.1.1। तो पहला रिक्वेस्ट किस पे गया? प्रॉक्सी सर्वर पे। इनिशियल चेक हुआ, अगर ये लेजिटिमेट कैटेगरी है तो सोर्स क्या हो जाएगा? सोर्स चेंज हो जाएगा, सोर्स बन जाएगा 192.168.1.20, एंड डेस्टिनेशन यहाँ पे जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा, इसके पास आएगा, फिर प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट को मीन्स यूजर को करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या, और डायरेक्ट कनेक्शन बाहर नहीं जा रहा है, इसके भी यहाँ पे कौन कर रहा है? प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट पे जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल। क्लाइंट और इंटरनल यूजर, क्लाइंट बोलते हैं जो इंटरनल यूजर होते हैं। नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर बिटवीन क्लाइंट एंड डेस्टिनेशन सर्वर, इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ऑन द बिहाफ ऑफ इस मशीन को प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट पे जा रहा है। जैसे हम लोग अटेंडेंस लगाते थे, कोई एब्सेंट है तो उसके बिहाफ पे कोई लगा रहा है। टेक्स्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, पुट्स क्लाइंट ऑन होल्ड अ मोमेंट। सो ये सारी डिटेल मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। इसका डेफिनेशन वगैरह एक बार गो थ्रू करना। एप्लीकेशन फायरवॉल,
जो अभी मैंने बताया था। यहाँ पे क्या कर रहा है, एप्लीकेशन आईडी। पहले हम लोग क्या यूज कर रहे थे, पोर्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एसएमटीपी। एसएमटीपी कौन सा पोर्ट यूज करता है, TCP/25। सो मैं अगर एप्लीकेशन अलाउ कर दिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा पोर्ट SM25 अलाउ हो जाएगा डिफॉल्ट में। DNS अलाउ कर दिया तो UDP/53 अलाउ हो गया। मैं HTTP अलाउ कर दे रहा हूँ एप्लीकेशन, तो पोर्ट 80 अलाउ हो जाएगा। HTTPS 443। ओके, क्लियर। पर्सनल फायरवॉल भी होते हैं। पर्सनल फायरवॉल क्या होता है, इन पॉइंट सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। लेट सपोज हर एक विंडो, अगर पीसी या लिनक्स मशीन कोई भी यूज कर रहे हो, उसमें क्या होता है, फायरवॉल होता है। अगर आप अपने सर्च करोगे सर्च बारे में फायरवॉल, तो आपके मशीन में भी होगा फायरवॉल। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल फायरवॉल बोलते हैं। पर्सनल फायरवॉल टाइप के लिए सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इंस्टॉल ऑन द एंड पॉइंट डिवाइस, जो हमारे पीसी या मशीन में होता है, या कोई सर्वर है, उस सर्वर पे आप इंस्टॉल कर सकते हो पर्सनली, उस स्पेसिफिक टू द सर्वर या स्पेसिफिक टू द मशीन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, वीवायर मोड, ये आगे डिटेल में आएगा सारी चीजें। वर्चुअल वायर या ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या होता है, जोन बेस्ड फायरवॉल क्या है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज यूटीएम फायरवॉल, आपको पूछा भी जाता है व्हाट इज यूटीएम, व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। इसको यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट बोलते हैं। मीन्स एक फायरवॉल ही आपको क्या कर रहा है, यूआरएल फिल्टर भी कर रहा है, एंटीवायरस भी चेक करता है, डेटा लीक प्रिवेंशन से वो कर रहा है, प्रॉक्सी का भी काम कर रहा है, आईपीएस आईडीएस का भी वो कर रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं। मीन्स सारी सर्विस यूनिफाइड, मीन्स एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे फीचर अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड यूटीएम। ओके, एंड व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इसी यूटीएम में ये क्या करता है, तो एक बार यूआरएल चेक करता है, यूआरएल कैटेगरी चेक करता है, एक बार एंटीवायरस चेक करता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, फिर डीएलपी, फिर आईपीएस आईडीएस इंजन को भेजता है। इसमें करता है, क्या करता है, टाइम टेकिंग होता है। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में सिंगल SP3, हम लोग पालो अल्टो का फीचर पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या है कि सारे फीचर वन गो में हो जाते हैं, ये सारे इंस्पेक्शन वन गो में हो जाते हैं। एंड इसमें क्या एक्स्ट्रा हमें मिलता है, ऐप आईडी, यूजर आइडेंटिफिकेशन, यूजर आईडी मैंने बोला, इरेस्पेक्टिव ऑफ आईपी, ये यूजर को आइडेंटिफाई करता है। कंटेंट आईडी, ये कंटेंट चेक करता है। अगर लेट सपोज मैंने जीमेल अलाउ कर दिया, जीमेल कौन से पोर्ट पे यूज करेगा, 443। बट मैं अगर उसमें कंटेंट क्या भेज रहा हूँ, उसमें मलेशियस कोई लिंक तो नहीं भेज रहा हूँ, ये सारी विद इन अ दैट डीप पैकेट लेवल इंस्पेक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। Is the role of traditional firewall add NI GPS feature? Next generation firewall is part of the third generation, and third generation का ही extended version है, ये कोई fourth generation firewall नहीं है। There is no big difference between UTM and next generation firewall, यही बताया मैंने, ये one go में करता है। Next generation firewall provides high performance and processing using to protect. High performance means कैसे करता है, जैसे यूटीएम में क्या होता है, वन बाई वन सारे पैकेट इंस्पेक्ट होते हैं, इन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वन गो में होता है। लेट सपोज आप किसी कंपनी में जाते हैं कुछ क्लियरेंस के लिए, तो वहाँ पे आईटी टीम है, फाइनेंस टीम होती है, फिजिकल एसेट टीम होती है, और भी क्या क्या होता है। जैसे आपने ये लिया होगा, कभी आप रिजाइन देते हो, अभी कोई कितने लोग फ्रेशर है, तो अपने कॉलेज वगैरह में कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो क्या करते हैं, कोई भी आप फाइल भेजते हो, वन बाई वन करते हैं। पहले आप अकाउंट डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, या फिजिकल या लैब, लाइब्रेरी, सबको अलग अलग जाता है। तो इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, सारे इंस्पेक्शन मीन्स जितने तरह के होते हैं, वन गो में सारे इंस्पेक्ट हो जाते हैं। एक जगह कुछ क्लियरेंस एनओसी लेना है, तो सारे जो भी क्लियरेंस एक ही वन गो में ही हो जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है कि वन गो में सारे इंस्पेक्शन कर देगा। तो ये हाई परफॉर्मेंस हो गया, लो लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस। ओके, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। तो फायरवॉल समझ में आ गया होगा।
क्या क्या फायरवॉल के टाइप होते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज पालो अल्टो नेटवर्क। पालो अल्टो क्या है? फायरवॉल नेटवर्क। एडी। यस, बट ये पालो अल्टो नाम कैसे पड़ा? पालो हाँ, अल्टो सिटी क्या है? सैन फ्रांसिस्को का एक सिटी है, हिस्ट्री ऑफ पालो यूएसए में। ये सिटी का नाम है। एंड देखो ये सिस्को कैसे नाम पड़ा? सिस्को तो सबको पता होगा, इसके नाम से पड़ा। इट इज कॉल्ड फ्रांसिस्को, तो यहाँ से नाम पड़ा सिस्को का। सिस्को वन ऑफ द लीडिंग, आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है ये सिस्को। तो ये किसके नाम पे पड़ा? फ्रांसिस्को के नाम पे सिस्को। एंड पालो अल्टो एक सिटी है इसमें, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में। द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नेम्ड बाय द सिटी ऑफ यूएसए। इसको मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी कंपनी भी है। ये मोर देन 80,000, ये ओल्ड डेटा है, 80,000 ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है। ये कब फाउंड, कब हुआ? 2005 में। इसका जो इंजीनियर किसने डेवलप किया? निर्जुक, इसने किया था। एंड पहले एक इसमें वो करता था चेक पॉइंट एंड नेट स्क्रीन जूनिपर एंड चेक पॉइंट का कंपनी है। इस चेक पॉइंट है, एक नेट स्क्रीन जूनिपर का है, उसमें वो करता था। उसके बाद इसने आई थिंक फायर हो गया। जॉब छोड़ने के बाद इसने किसने क्या बनाया था? पालो अल्टो नेटवर्क को, कंपनी को। इसको ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक पालो अल्टो को। ओके, इसके फीचर क्या है? द ओनली फाइल विल आइडेंटिफाई, कंट्रोल, इंस्पेक्ट योर एसएसएल एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक एंड एप्लीकेशन। अब तो ये सारे फीचर आ गए हैं। जैसे हमने स्टेटफुल बताया था मैंने। व्हाट इज स्टेटफुल? स्टेटफुल फीचर कोई रिकॉल कर सकता है? व्हाट इज स्टेटफुल फायरवॉल? हेलो, एनीवन? मीन्स कोई भी पैकेट आउटसाइड जाता है तो स्टेट मेंटेन करके रखता है रिटर्न ट्रैफिक को। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेशन अलाउ करता है, करेक्ट? रिटर्न ट्रैफिक के लिए हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? चेक पॉइंट ने किया था। वैसे ही कई सारे फीचर है जिसमें SP3 है, यूनिक फीचर है पालो अल्टो का, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। ये क्यों SP3 बोलते हैं? बिकॉज सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग 3 टाइम आता है, इसलिए इसको SP3 बोलते हैं। और क्या यूनिक फीचर है ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आज बताता हूँ तो आई थिंक आप लोग समझ में नहीं आएगा। तो अभी कुछ लाइव करेंगे, उसके बाद बताऊंगा, समझ में आएगा। ये रियल टाइम में कंटेंट स्कैनिंग करता है, जीरो डे अटैक को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज जीरो डे अटैक? जो अननोन है, अभी तक पता ही नहीं है, तो बिहेवियरल एनालिसिस से उसको आइडेंटिफाई करता है। जो नोन अटैक है उसके लिए कैसे करता है? उसका सिग्नेचर बन जाते हैं उसके पैटर्न पे। तो अगर उस टाइप का फिर से अटैक आएगा, फायरवॉल मैच करेगा उसको, पैटर्न को, डिनाई कर देगा ट्रैफिक को। ओके, Palo Alto is a security that allows you to deny traffic by using single fingerprint. If one company experiences a unique attack, all other subscriber network are updated. इसमें क्या यूनिक फीचर है? लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग 80,000 कंपनियां इसको यूज कर रही है, 80,000 ऑल ओवर ग्लोब, 150 प्लस कंट्री में यूज होता है ये। तो लेट्स सपोज मैं इंडिया में हूँ, आई मीन इंडिया, यूजिंग पालो अल्टो फायरवॉल। ये मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ये किससे? पालो अल्टो क्लाउड से कनेक्टेड होता है, ऑलवेज अपडेट होते रहता है। एक अटैक होता है यूएस में या यूरोप में, कहीं भी होता है, यू में होता है कोई अटैक, उसका डेटा लॉस होता है या नहीं होता है, फायरवॉल आइडेंटिफाई कर लेता है कि यूनिक काइंड ऑफ अटैक है। इसमें या मान लो कोई अटैक सक्सेसफुल हो जाता है, डेटा वो होता है, तो विद इन 5 मिनट क्या करता है, ये इसको सिग्नेचर पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, उसका सिग्नेचर बनाता है। ऑल अदर द ग्लोब, मींस लेट सपोज 80,000 कंपनी है तो उसमें सारे सिग्नेचर प्रोवाइड कर देता है कि अगर उस तरह का कोई और अटैक अगर इंडिया में भी आता है तो तुरंत आइडेंटिफाई कर देगा और ब्लॉक कर देगा इमीडिएटली। ये सारी यूनिक फीचर है।
if you can allow certain function of an application without blocking entire application. If I'm saying certain function, तो आप हम लोग अभी फेसबुक का मैंने एग्जांपल लिया था. तो इसको मैं चाहूँ तो केवल चैट ब्लॉक कर सकता हूँ, या ओनली वीडियो ब्लॉक कर सकता हूँ, वेब ब्राउजिंग अलाउ कर सकता हूँ, या मैं सारे अलाउ कर दूंगा. मैं चाहूंगा कोई पोस्ट ना कर पाए उस पे. तो ये सारे फीचर अवेलेबल है पालो अल्टो में. ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एप्लीकेशन को. इन कस्टम एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं. कोई एप्लीकेशन नोन है, उसके लिए हम लोग कस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं. कैसे बनाएंगे, विल डिस्कस. सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. ये पालो अल्टो का आर्किटेक्चर है. Single pass parallel processing. Single pass is a software, parallel processing is a hardware. Hardware, if I'm saying this, it's having separate engine जो इंस्पेक्ट करता है. नेटवर्किंग के लिए अलग इंजन होता है, सिक्योरिटी के लिए अलग इंजन होता है, कंटेंट के लिए अलग इंजन होता है, कंटेंट इंजन होता है. बिफोर दैट हमें समझना है कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन. व्हाट इज दिस टर्मिनोलॉजी? कोई है आप लोगों में जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है? नहीं सर. सब लोग फ्रेशर हो? ओके, दैट्स गुड. आई विल एक्सप्लेन. नहीं सर बताइए. कोई भी डिवाइस आपको आता है जो फिजिकल है, या उसको एक्सेस लेने के लिए क्या होगा, हमें आईपी के थ्रू अपने पीसी में कंसोल के थ्रू ले सकते हैं. या करेक्ट कंसोल के थ्रू लेते हैं हम लोग. एज ए कंसोल लगे, या रिमोटली ले रहे होते हैं एसएसएच टेलनेट या एचटीटीपीएस कोई बेसिस पे करते हो जैसे व्हाटएवर. तो इसमें दो प्लेन होते हैं. एक होता है कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन. कोई डिवाइस एक लेट्स सपोज हम पालो अल्टो का ही एग्जांपल लेता हूँ. इसमें दो प्लेन है, कंट्रोल एंड डेटा प्लेन. डिफरेंसेस क्या है कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन में? कंट्रोल प्लेन में इस मैनेज कर टू द डिवाइस. दो तरह के ट्रैफिक होते हैं. टू द डिवाइस, थ्रू द डिवाइस. जैसे मैंने इसको एक्सेस किया, यहाँ पे एक पॉलिसी बनाया कि लेट सपोज समवन इज कमिंग फ्रॉम एक्स वाई एबीसी 10.1.1.10 IP एंड ट्राइंग टू एक्सेस xyz.com. इसको अलाउ कर दो. इसको मैंने क्या एक पॉलिसी बनाया, मैंने टू द डिवाइस मैंने बनाया. एक डिवाइस के लिए मैंने बनाया, या कुछ लॉग देख रहा हूँ, लॉग जनरेट किया हूँ, रिपोर्ट जनरेट किया हूँ उसके लॉगिंग के लिए. तो इसको क्या हो गया, टू द डिवाइस हो गया. थ्रू द डिवाइस मैं बाहर जा रहा हूँ, इंटरनेट पे जा रहा हूँ, उसको इंस्पेक्ट कर रहा है कि वेदर ट्रैफिक है कि नहीं, राउटिंग है कि नहीं, नेट है कि नहीं, सारे प्रोफाइल सिक्योरिटी प्रोफाइल है जिसमें कोई मलेशियस कंटेंट तो नहीं है. तो ये सारे ट्रैफिक को क्या बोलते हैं, थ्रू द डिवाइस बोलते हैं. मीन्स आप क्रॉस करके, ये हमारा डिवाइस है, ये हमारा फायरवॉल है, आप इंटरनेट पे जा रहे हो, यहाँ पे एक्सेस क्या कर रहे हो, कोई वेबसाइट ही, फेसबुक गूगल, यहाँ से मैंने एक्सेस किया. तो आप इसको क्रॉस कर गए, मीन थ्रू द डिवाइस गए और बाहर इंस्पेक्ट हुआ. टू द डिवाइस मैंने इस डिवाइस को लॉगिन किया, यहाँ पे मैंने कोई लॉग जनरेट किया, रिपोर्ट किया, कोई पॉलिसी बनाया डिवाइस पे, दैट इज कॉल्ड टू द डिवाइस. क्लियर? यस. ये समझ आया ना, टू द डिवाइस एंड थ्रू द डिवाइस क्या होता है? मीन्स एक डिवाइस को एक्सेस करके आपने उस पे कुछ डिवाइस लेवल पे कुछ किया. एक थ्रू द डिवाइस दो तरह के ट्रैफिक होता है. जैसे मैंने एक यहाँ से ट्रैफिक किया, इस पे कुछ पॉलिसी बनाया, बस एक ट्रैफिक किया, इसको इंटरनेट पे चला गया, मैं क्रॉस करके सारे इंस्पेक्शन किया, इट्स कॉल्ड थ्रू द डिवाइस. तो सेपरेट सेपरेट प्लेन होने का क्या बेनिफिट है? लेट सपोज यहाँ पे अटैक होता है, इस पे डॉस अटैक हो गया. व्हाट इज डॉस अटैक? डिनाइल ऑफ सर्विसेज. आप लोग कॉलेज में भी पढ़े होंगे ये सारी चीजें. व्हाट इज डॉस? डीडोस. डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है. लेट सपोज आपका फेसबुक है, आपने अटैक कर दिया उसको, लेट सपोज एक साथ तो 10,000 यूजर ने या लाइक्स ऑफ यूजर ने किया और उसको अनअवेलेबल कर दिया. अब कैसे होता है ये सारे थोड़े डिटेल में जाना है. सीन जाता है, फिर स्पूफ आईपी से जाता है, उसको सीनाई का वेट करेगा. तो एक बार 3 बैंड चेक आप लोग पढ़ लोगे तो समझ में आएगा. ये बताऊंगा मैं आगे डिटेल में जब सिक्योरिटी प्रोफाइल बताऊंगा. तो
तो अगर हमारा डेटा प्लेन अगर डाउन चला जाता है या कुछ इशू आता है तो कंट्रोल प्लेन एक्सेसिबल रहेगा, क्योंकि इसके पास सेपरेट रैम एंड सीपीयू है। डेटा प्लेन का सेपरेट रैम एंड सीपीयू है। लेट सपोज कंट्रोल प्लेन हमारा कुछ इशू आ जाता है तो फिर भी डेटा प्लेन एक्टिवली ट्रैफिक प्रोसेस करेगा। ओके, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टू सेपरेट प्लेन। App ID, content ID, user ID, application identification, it's identify the application। यूजर आईडी आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है, यूजर को आइडेंटिफाई करता है। कंटेंट आईडी में कंटेंट चेक करता है, स्कैन द कंटेंट वेदर इट्स लेजिटिमेट या नॉट, या कोई मलेशियस टाइप ऑफ कंटेंट तो नहीं भेज रहे हो। लेट सपोज मैंने वर्ड फाइल ब्लॉक कर रखा है इस कंटेंट को, वर्ड या पीडीएफ, तो इट चेक करेगा कंटेंट एंड इट विल ब्लॉक, ये कोई मलेशियस कंटेंट डाउनलोड या नहीं कर रहे हैं। ऐप आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया यूनिक आइडेंटिफाई करता है, जैसे यूट्यूब है, स्काइप है, फेसबुक है, ओरेकल, वेबएक्स है, तो चेक द कंटेंट। ओके, सो कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, मैं वही बता रहा था। क्विकली मैं अब समराइज कर दे रहा हूँ। इस डेटा प्लेन एंड सेपरेट, इसमें डेटा प्लेन में भी अलग अलग इंजन होता है, सिग्नेचर के लिए अलग इंजन होता है, मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर यूज करता है। डेटा प्लेन में क्या हाई अवेलेबल मैनेजमेंट है, हाई स्पीड लॉगिंग एंड राउटिंग, अगर कोई लॉग जनरेट करे, कोई हिस्टोरिकल लॉग जनरेट करना है, काइंड ऑफ, इफ आई एम सेइंग हिस्टोरिकल, लेट सपोज आपका फायरवॉल है, इफ आई वांट टू सी कि अगर कोई एक यूजर है, स्पेसिफिक यूजर है, उसका आईपी है 10.1.1.20, वो लास्ट 20 दिनों में 20 दिनों में क्या क्या एक्सेस करा है, वो सारे फेच करना है, कंट्रोल प्लेन के थ्रू होगा, डेटा प्लेन के थ्रू प्रोसेस करता है। विद इन डेटा प्लेन भी अलग अलग इंजन होगा। तो सारे आर्किटेक्चर आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, मैं बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अदर कंपनी में क्या है। यूटीएम फीचर है जिसमें हमारे अलग अलग फीचर हैं। लेट सपोज सिस्को फायरवॉल की मैं बात करूं या अदर फायरवॉल का, तो एंटीवायरस है, यूआरएल कैटेगरी है, या आईपीएस आईडीएस है, वन गो में होता है। पालो अल्टो में क्या करता है, ये वन गो में सारे इंस्पेक्शन करता है। रिकॉग्नाइज टोरेंट एंड ब्लॉक पेज, इसमें क्या करता है, इसमें पहले देखेगा पोर्ट टोरेंट, जैसे मैंने डीएनएस को अलाउ करते पहले चेक करेगा पोर्ट 53 अलाउ हुआ है कि नहीं, देन आईपीएस इंजन को पास जाएगा, आईपीएस इंजन देखेगा अरे ये तो दूसरा ट्रैफिक है, देन ब्लॉक करता है। मींस इनिशियली अलाउ किया, इसका आईपीएस इंजन ब्लॉक करता है। बट इन पालो अल्टो में क्या होता है, एक ही इंजन है, एक ही सेपरेट सेपरेट इंजन है, बट वन गो में फर्स्ट गो में ही ये ब्लॉक कर देगा। तो दैट इज द डिफरेंस। किसी कोई डाउट है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैब में जो भी डिस्कस किया है लैब में दिखाऊंगा मैं कि हाउ डज इट वर्क, हाउ वी कैन क्रिएट पॉलिसी, हाउ वी कैन ब्लॉक। देन आगे हम लोग डिप्लॉयमेंट मॉडल या जो भी है आगे कोर्स देखेंगे। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ओके, देन आज का यस इतना ही सर रखते ये हैं। हमें ये जो अपने वो इससे पीडीएफ बना के जब आपको आप हमें मेल करोगे फिर ये क्या करोगे, जैसे बाई चांस हमें ये पढ़ना होता आपने पढ़ाया है। मैं दे दूंगा, जब आपका रिकॉर्डिंग अपलोड होता है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा ये भी। ओके, रिकॉर्डिंग में चलेगा, जो सॉफ्ट कॉपी है सर ये भी डाल दोगे आप उसमें, सॉफ्ट कॉपी हाँ जब। हाँ, ये सारे अपलोड होंगे वहाँ पे। अच्छा, डॉक्यूमेंट आप के टीम फॉर्म में। बता देगी आपको कैसे क्या एक्सेस करना होता है, कहाँ रिकॉर्डिंग मिलता है, ये सारे ठीक है आपको ठीक है बताया सर, ठीक है जाएगा। ठीक है, मतलब सॉफ्ट कॉपी से गो थ्रू हो जाएंगे ना, वजह से आपने पढ़ा दिया हाँ हाँ हाँ, वो या स्टडी कर डेफिनेटली। लेंगे एक बार। हाँ हाँ। और बेसिकली क्या होता है, मैं आप लोगों को क्लास में जैसे सिक्योरिटी क्या होता है, काफी डायनेमिक होता है, डे बाई डे चेंज होता है। मैं अगर नोट्स बनाया हूँ कोई 1 साल पहले या 6 महीने पहले, 1 महीने पहले बनाया हूँ, नेक्स्ट मंथ कुछ नया अपडेट आता है, तो मैं केबी आर्टिकल होता है कोई भी, उसका केबी आर्टिकल के नोट्स होता है, नॉलेज बेस होता है जो पालो अल्टो का, वो सारे शेयर करूंगा, उसको पढ़ना, उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारे मिलेंगे आपको। हाँ ये नहीं भी नहीं शेयर नहीं, कर आप दूंगा। वो शेयर कर दो सर, कोई नहीं, जैसे हमें गो थ्रू जैसे एक बंदे होते हैं या अपने आप श्योर, गो मैं थ्रू वो हो शेयर जाते हैं। करा दूंगा। आपने पढ़ाया हम, ताकि सेल्फ स्टडी भी एक जरूरी होती है। डेफिनेटली।
और कोई किसी को डाउट? यस अंकुश, आई थिंक क्लियर है। स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं जिन्होंने CCNA लेवल से स्टार्ट करना है और जो पैलो अल्टो से स्टार्ट करना चाहते हैं। भी करते हैं सेशन। आई थिंक क्लियर है डाउट स्टूडेंट्स। और आप ऑफिशियल नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो या अपने काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय। ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू गाइस।